Viewers, today is Teachers' Day. The Congress government in Karnataka decided to teach us all a lesson in appeasement by putting the best principal award on hold. They have shown us that standing up for the constitution and rules is not as important as placating vote banks. The principal who dared to enforce the rules and prevent hijab-clad girls from entering school was initially chosen for the award, but then the SDPI, a vote bank group, flexed its muscles and the Congress government caved in. Because, you know, appeasement is the highest form of patriotism. This is a travesty of epic proportions. Viewers, a principal who upholds the law and constitution is humiliated, while those who seek to undermine it are rewarded. So, viewers, on this Teachers' Day, let's salute the Congress government's commitment to appeasement and vote bank politics. May this be a lesson to all of us. Forget about the principles, just pander to the powers that be. We had to put it on hold for now. Later we'll take a decision. The way he treated the children, that is the issue, that's all. If nothing is done, no problem with it, then we'll take a call. Don't politicize this issue. Either way, if something has any government order also, if he is following, has to be ordered in a certain manner. It's nothing, no vindictive. Please don't put any political this thing, and I don't want to do that. And it's not me who finalizes. There is a committee for that, and they take a usual good decision. It is really demoralizing for the teacher community. At the behest of the pressure from pro-hijab, anti-national elements, this government has succumbed to these anti-national forces. Let's open this up. So the Congress government had a problem with the lampposts after the SDPI flagged it. Has now put the award of best principal on hold because the SDPI is objecting to it. Just one remark, two full sentences from the SDPI led to the decision. Now let me tell you what has happened. हर्षवर्धन जी, इस पे जरा ध्यान दीजिए, पूरी प्रक्रिया कैसे थी, ये अवार्ड अनाउंस कैसे हुआ। रामाकृष्णा जी ने अपना एप्लीकेशन भेजा अवार्ड के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिव्यू हुई, उनके काम क्रेडेंशियल्स को माना गया कि हाँ ये अवार्ड के लिए ये जायज है, वर्दी है। दोनों प्रिंसिपल्स को बेंगलुरु बुलाया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उनसे मीटिंग की, उसके बाद ये डिक्लेयर किया गया। लेकिन उसके बाद एक एसडीपीआई का पोस्ट आता है और फिर जो हुआ अब हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? गणेश जी, आज कांग्रेस के नेताओं ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को नमन किया है, उनको याद किया है, उनका सम्मान किया है। लेकिन बीजी रामकृष्ण जी को तो लग रहा होगा ना आज कि शिक्षक होना और अच्छा शिक्षक होना उनके लिए भारी पड़ गया। और आप जरा सोचिए, किसी राज्य में अगर इस पैमाने पर शिक्षकों को दिया जाने वाला सम्मान वापस ले लिया जाए तो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए उससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन नहीं हो सकता। और मैं तो यही कहूंगा, आज देश भर के शिक्षक पीड़ित होंगे, उनको कष्ट हो रहा होगा कि एक सरकार इस तरह से अपीजमेंट के नाम पर निर्णय लेती। ये बेहद खतरनाक है। अगर सरकार को कुछ लगता वो नहीं अवार्ड देते, किसी क्राइटेरिया में नहीं होते तो कोई इश्यू ही नहीं था। लेकिन एक संस्था, वो एसडीपीआई, वो जाकर ये कर देती है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले अंजनाद्री पहाड़ी पर भी यही हुआ था, जहां लैंप पोस्ट जो गदा और तीर धनुष की शक्ल में थे उसको भी हटाने की कोशिश। अच्छा हुआ कि विरोध के बाद उसे वापस लिया गया है। मैं तो ये कहूंगा सरकार को माफी मांगनी चाहिए और रामचंद्रन जी का सम्मान करना चाहिए। कपिल मदान, क्या सरकार माफी मांगेंगी? क्या आप माफी मांगेंगे? क्या गलत नहीं हुआ है? प्रमेश, टीचर्स डे पे मैंने सुना हर्षवर्धन जी को। मैं हर्षवर्धन जी को बताऊं, अगर आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले तकरीबन 70,000 जो हमारे टीचर्स हैं वो धरना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग कंफर्म्ड। एंड इफ यू से दैट बीजेपी इज वन गवर्नमेंट that is working for the benefit, or they have some sort of a gratitude, or they want to do something for the teacher society, then I think, the BJP and, Mr. Guru Prakash ji here should apologize once again. He's apologized in the previous debate and he should take this opportunity and, tender an apology to all those teachers who are protesting. Now, my point number 2, which is concerning this debate. Now, you remember what has happened. There was one particular jailer who has given 6 times payroll to Ram Rahim.
He has now joined कपिल मदान, BJP. look, Now, look, just look. a minute. If Just you a minute, don't have an Pranesh. answer, just say कि मुझे नहीं पता कि कैसे डिफेंड करूं. Don't beat around the bush, please. Kapil Madan, I asked you a direct question. The principal who is doing his job by stopping girls from entering because they were wearing hijab, because that was the rule. उसको आप पहले award देते हैं. Then you put the award on hold because the SDPI hasn't liked it. You have no answers. Adil Hassan, Pranesh. you must be happy. SDPI is dictating. आप वहां पे हिमाचल में बोल रहे हैं कि कांग्रेस देखिए नफरत फैला रही है, यहां पे इन्होंने बैलेंस कर लिया. अब आप तारीफ कीजिए. नहीं, बैलेंस नहीं किया. नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बिहार में 42 लोग को जो पुरस्कार मिलना चाहिए था जो भारत सरकार से शिक्षा दिवस पे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है. उर्दू सेकंड लैंग्वेज है बिहार में. ये नीतीश कुमार का चश्मा है. ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है. और ये जो किया प्रिंसिपल ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हिजाब पर. हिजाब इज ए चॉइस, यू कांट स्टॉप दी. वो प्रिंसिपल का जो भी ऑफिसर है जो उसका नाम सेलेक्ट किया उसको दोषी होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए. वो जरूर बीजेपी का वक्त का अपॉइंटी होगा वो ऑफिसर, या कहीं ना कहीं कोई आरएसएस बीजेपी के लोग होंगे, क्योंकि उनको तो इंसाफ करना नहीं है. उनको बिल्कुल तो सिर्फ अपने लोग को सेट देखिए करना है. आदिल भाई, एक बिहार काम में एक कीजिए, को नहीं जब ये दिया गया डिबेट है. खत्म हो, मैं आपको बताता हूं, सुनिए. जब एक डिबेट खत्म हो तो आप और विवेक श्रीवास्तव, कपिल मदान भी, आप लोग मिलके मुझे एक अवार्ड दे दीजिए और बोलिए कि ये जो पैनल है वो बहुत ही सेक्युलर है क्योंकि इसमें एक मुसलमान भी है. अब क्या जाति पूछ के, धर्म पूछ के शिक्षकों को अवार्ड मिलेगा क्या? कि अगर आप पैनल पे नहीं होते, कोई दूसरा होता तो ये पैनल कम्युनल हो जाता, और क्योंकि आदिल हसन बैठे हैं तो सेक्युलर पैनल हो जाएगा. तो कहां तक इसको स्ट्रेच करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को? अब आप बोल रहे हैं कि इतने शिक्षकों में कोई भी मुसलमान नहीं है. क्या क्राइटेरिया क्या होता है? रिलीजन के हिसाब से देना, जितनी आबादी उतना हक, ये क्या चल रहा है? ये मुस्लिम टीचर नहीं दिखा. 2.5 करोड़ की आबादी में एक मुस्लिम टीचर नहीं दिखा. अरे अगर उस साल नहीं मिला, उस साल नहीं मिला तो जबरदस्ती बैलेंस में दे देंगे. नहीं, ये क्या लॉजिक है? हर्षवर्धन जी, साजिश है. हर्षवर्धन जी, ये जितनी आबादी उतना हक, ये सब में अप्लाई होगा. अब नहीं, मुझे लगता है कि आदिल भाई की मांग एकदम सही है. वायनाड मुस्लिम बहुल लोकसभा है और अभी राहुल गांधी ने तो वो नहीं किया. मुझे लगता है कि प्रियंका वहां लड़ने जाएं, उससे पहले इनको अपना आवेदन वहां दे देना चाहिए कि वहां कम से कम मुसलमान को लड़ाए. मुझे लगता है ये करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा, और एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये कहते तो हैं दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए. देखिए वायनाड में मुसलमान का हक खा गए, और जो रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां सबसे ज्यादा पासवान है. उस समाज के लोगों को क्यों नहीं दिया टिकट? इनको कोई अवधेश पासी अगर मिल सकते थे अयोध्या में, तो यहां भी तो कोई मिल सकता था. क्यों नहीं दिया राहुल गांधी ने? दोनों जगह दलित का हिस्सा खाया, मुसलमान का हिस्सा खाया. विवेक श्रीवास्तव, अगर आपके नाम पे मैं अवार्ड अनाउंस कर दूं और फिर उसको होल्ड पे डाल दूं तो कैसा लगेगा आपको? जी जी जी, हाँ. नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए. पहली चीज तो है कि रायबरेली के पासवानों ने ही तो जितवाया ना राहुल गांधी को. तो जब पासवान कम्युनिटी खुश है तो यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्यों दुखी हो रहे हैं? ये दुखी हो रहे हैं कि राहुल गांधी जीत कैसे गए और कैसे वो इसीलिए भारी मतों से जीते हैं. वो प्रधानमंत्री का चलिए आप सब इनको पची नहीं बात. कोई बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप. अगर मैंने इफ आई अनाउंस एन अवार्ड, 1 मिनट, देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सर, मेरे जी, if I were to announce an award for you and then put it on hold for whatever reasons, how would you feel? Yes. No, I may feel good or bad. How does that matter? What matters is what the community feels, the country feels. Which community, the people sir? feel, the students Which feel. community? Whom I've taught. That is important. Which so community? This government, I'll tell you this. Look, the minister has, no, 1 second, sir. The minister has clearly said the award has not been taken back. It is only being reviewed. It is just a temporary phase. So I think hum halla galat macha rahe hain. Secondly, the allegation is that on that particular day, this particular gentleman I don't understand. was a little high-handed and in the rough previous with the debate, students. there is a problem. I think there is a problem. I'll tell you what the problem is. In the previous debate, you said that Congress minister is, just one random person saying something. कि उनके बात पे ध्यान मत दीजिए. कपिल मदान बोल रहे थे कि नहीं अभी रिव्यू होगा. अरे भाई, अनाउंसमेंट के बाद रिव्यू होती है या उससे पहले रिव्यू होना चाहिए? यहां पे अवार्ड दे दिया, उसके बाद रिव्यू हो रहा है. व्हाट आर यू रिव्यूइंग? हाउ मेनी वोट्स दिस विल सेव? गुरु प्रकाश, व्हाट इज हैपनिंग? No, Pranesh, I think this decision to withdraw the award has some serious implications for democracy and justice. और बहुत अच्छी बात कही. ये SDPI क्या है भाई?
ये एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था, जिस पीएफआई को उसका पॉलिटिकल विंग है। और उस एसडीपीआई की बातों को सुन करके कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को अवार्ड देने से इंकार किया जो सिर्फ सरकार के नियमों को फॉलो कर रहा था। And let me also remind your viewers, Pranesh, Karnataka High Court has categorically said a school is a place for uniform and discipline. School में आप अपने व्यक्तिगत अधिकार को उपयोग नहीं कर सकते हैं। And second, Congress party, Mr. Siddharamaiah, Mr. Rahul Gandhi talks about Baba Saheb Ambedkar. I have this book in front of me. Pakistan or the Partition of India. Baba Saheb Ambedkar in this book on page number 255 has categorically said that hijab is an indication of slavish mentality. Hijab गुलामी मानसिकता का प्रतीक है और उसी हिजाब के विरोध में अगर किसी निर्णय को एक शिक्षक लेता है और उसको आप अवार्ड देने से इंकार करते हैं, this is clearly appeasement over merit. Adil Hasan This is death of democracy. This is death of constitutional ethos and values. Adil Hasan. You have to understand this. पर जो भाजपा सबरमिला जजमेंट नहीं मान रही है वो संविधान कर रही है। मुंबई में हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिजाब इज ए चॉइस, यू कांट स्टॉप। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट कहा है 10 दिन 15 दिन पहले। तो बीजेपी से संविधान नहीं मानना, जो बीजेपी क्या है, सबरमिला में चुप रहती है, बीजेपी के बारे में पता है। और जो अगर बिहार में 42 टीचर है, उसमें क्या इतनी बड़ी आबादी जिसका उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, क्या एक भी मुस्लिम कम्युनिटी से अवार्ड नहीं मिलने का है? टोटल वहां पर इनजस्टिस हुआ है और वहां पर अगर प्रिंसिपल ने रोका है तो इनजस्टिस किया, रिव्यू होना चाहिए। तो एकदम सही क्या है, क्या अरे दिक्कत है? आदिल भाई, रिव्यू होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर प्रिंसिपल ने रोका और गलत किया तो कांग्रेस की जो सरकार है उनको तो जेल में डाल देना चाहिए अगर गलती की है, पनिशमेंट अगर अप्लाई होता है। एक मिनट, आप अवार्ड देने के बाद देखिए एसडीपीआई ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। एसडीपीआई ये कह रही है सरकार को कि आपने एक संघ के कार्यकर्ता को अवार्ड दे दिया है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ द कांग्रेस गवर्नमेंट बैकडोर्स एंड एनकरेजेस संघ परिवार लॉयलिस्ट। तो संघ के हैं इसीलिए अवार्ड नहीं मिलना चाहिए सर। अगर क्या उन्होंने एक मिनट, स्कूल जो है वो रूल बुक से चलेगी या रिलीजन से चलेगी, ये बताइए पहले। सुनिए, स्कूल तो पूरा रूल बुक से चलेगी। अगर उसमें संघ का कोई मैनिफेस्टो नाफिज करेगा तो उसका ऑब्जेक्शन होगा। और हम लोग की कांग्रेस से यही शिकायत है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। हमारी शिकायत। और वैसे हिजाब एसेंशियल नहीं है रिलीजन में, ये भी कोर्ट ने कहा है, लेकिन आप उस कोर्ट को कोर्ट नहीं करेंगे। हर्षवर्धन जी, ये देखिए आधी बात बता रहे हैं ये। नहीं, देखिए आदिल जी तो वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अब देखिए गुरुप्रकाश पासवान जी ने बताया तो गुरुप्रकाश जी की बात नहीं सुनेंगे। अब उनकी बात इनको नहीं समझ में आएगी, ये आप समझिए इसको। और मैं तो कई बार कहता हूं ना कि इस देश में एक अजीब किस्म का नैरेटिव बढ़ा जाता है। आप किसी भी मुद्दे पर जब सीधी बात करिए तो तुरंत कहीं और ले जाएंगे। ये हमने पहले की डिबेट में भी देखा और हम अभी की डिबेट में देख रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस देश में शिक्षा और शिक्षकों के साथ इस तरह की कम्युनल, इस तरह की जातिवादी कास्टिस्ट अप्रोच के साथ राजनीति हो, वो बेहद खतरनाक है। इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। इससे हम बाहर आएंगे विवेक श्रीवास्तव, इससे हम कब बाहर आएंगे? When will this naked appeasement end? देखिए, हर एक त्रिपाठी जी, इस देश की एजुकेशन पॉलिसी का संघीकरण, टेक्स्ट बुक को चेंज करना, इतिहास को रीराइट करना, जो आरएसएस कर रहा है हम सब जानते हैं। तो ज्ञान मत फैलिए यहाँ पे। नहीं, देखिए भाषा का मर्यादा रखिए। एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव 1 मिनट सर, प्लीज भाषा का मर्यादा रखिए। यू आर यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ऑन टेलीविजन, डोंट डू इट प्लीज। विवेक श्रीवास्तव प्लीज, आई एम आस्किंग यू वन सिंपल क्वेश्चन। 1 minute. Let's be civil, sir. Please, Vivek Srivastava. I asked you a simple question and let's end the debate with the answer. Is there a problem in enforcing rules? Was the principal in the wrong for standing with the rule book? He said hijab allowed नहीं है, rules permit नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, there was nothing wrong in implementing the rules, but the way he implemented it was very, very high-handed, and there were complaints about it. Which way? Did he and hold the minister has apologized did he hold that a this was gun not in his taken hand? into consideration by the committee. But I don't Sir, listen to me. understand which way. What sir, was this the way that you are minister ने कहा objecting है- to? Was he opening fire on the students? अरे सर, कल आप कहेंगे कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को स्कूल में नहीं, tomorrow you will say the teacher has got a right to beat the students. I'm not saying that. Wants them to learn I'm not mathematics. saying that.
तो अब ये तो नहीं The होगा ना. The principal clock did cannot not turn even back. touch the students. He was standing हाँ, at the the- gate this telling them the principal- rules prohibit you from entering the school if you don't take off the hijab. What is the problem? Why are you pandering to the vote bank? And if the award is announced, why is it put on hold? Because, you know, PFI's associate has a problem with it. No. There's no associate. SDPI is you go to the election commission. Why doesn't the BJP go to the election commission Election and say commission? this party is not correct? इसको ban This करिए. is not about वो भी banning election something. commission This की is है. about vote bank अगर वो party appeasement. है तो election commission. Then what is it about? There is no vote bank appeasement, sir. No. Will awards If now a be gentleman dictated who's by a the principal cannot who will counsel the decide? students, cannot talk to them, You were cannot talking lecture about them, the cannot motivate community. them. 1 minute. Who's wrong? Will the state decide awards or will SDPI decide awards? Or will hijab back groups or groups that back hijab, they will dictate? यहां पे आपको संविधान नहीं बचाना है. Government which will decide, but if सर प्रिंसिपल का बिहेवियर अगर गलत था तो उस पर रिकंसिडर बट अगर इसमें कर रहे आप हैं ही तो कोई कह रहे हैं बुराई गलत नहीं है. नहीं था. अभी आपने बोला कि कुछ गलत नहीं किया, फिर आप बोल रहे हैं गलत. विवेक श्रीवास्तव, I don't know what to say. The last time we were on a show together, a meme was made. I don't know who is watching this debate today. But I've run out of time. I thank all of you for joining us. The news hour with Navita Kumar on the other side.